تو ناظرین بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی لاہور کی، جہاں تیز ہواؤں کا راج ہے۔ شام میں رات کا سما ہے، کئی علاقوں میں طوفان کے ساتھ ساتھ بادل بھی برسے ہیں۔ تیز آندھی اور طوفان کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہے، میٹرو ٹرین سروس بھی معطل کر دی گئی ہے، نظام زندگی متاثر ہو گیا ہے۔ تو لاہور کی تازہ ترین صورتحال اور فوٹیج بھی آپ اب سے کچھ دیر پہلے کی دیکھ سکتے ہیں دنیا نیوز کی سکرین پر۔ اس وقت شام میں رات کا سما ہے، کئی علاقوں میں طوفان کے ساتھ ساتھ بادل بھی برسے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے مبین حیدر موجود ہیں۔ مبین، آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور کیا صورتحال ہے اس وقت؟ میں اس کنال روڈ کے اوپر موجود ہوں۔ صورتحال اس طرح سے ہے کہ میں دیکھا کہ دوپہر کے اوقات میں جو ہے بالکل ایک دم شام کے رات کا سما جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ شہر لاہور میں 5 بجے کے بعد جو ہے وہ تیز گرج چمک کے ساتھ جو ہے آندھی کے ساتھ جو گرد آلود ہوائیں چلی، اس کے بعد پراپر موسلا دھار بارش پورے لاہور کے اندر برسی، جس میں گڑی شاہو، مال روڈ، کنال روڈ، فیروز پور اور دیگر شہر کا جو علاقہ تھا وہاں پر بارش برسی اور تیز طوفانی بارش تھی اور تیز طوفانی ہوا چلنے کا سلسلہ بھی تھا، جس کے باعث جو ہے وہ شہر میں بیشتر مقامات پر جو ہے وہ درخت گرنے کے واقعات بھی رپورٹ کیے گئے، دیواریں گرنے کے واقعات بھی رپورٹ کیے گئے۔ ٹو بی پریسائز اگر میں بات کروں تو محبتیاں کے علاقے میں جو ہے دیوار گرنے کا واقعہ سامنے آیا، رائیونڈ کے علاقے میں دیوار گرنے کا واقعہ سامنے، جس میں 2 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ شہر کے بیشتر مقامات پر درخت گرنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے۔ کنال روڈ پر 2 سے 3 جگہ پر جو درخت گرنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے۔ مال روڈ کے اوپر جو ہے تیز آندھی کے باعث درخت گرنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے۔ جو چڑیا گھر اس کی پارکنگ کے اندر درخت گرنے کے واقعات رپورٹ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ درخت اور دیواریں گرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے شہر کے متعدد فیڈرز بھی جو ہے وہ ٹرپ کر چکے، جس میں سے شہر کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ بجلی سے محروم ہو۔ اس میں غازی روڈ کا علاقہ، کوٹ لکھپت کے علاقہ، ڈیفینس کے علاقہ، تاج پورہ کے علاقہ، شالیمار کے علاقہ، باغبان پورہ کے علاقہ، گڑی چوک کے علاقہ اور دیگر ایریاز جو ہیں وہ شہر کے، کیونکہ میجر شہر کا جو حصہ ہے وہ اس وقت بجلی سے محروم ہے، کیونکہ فیڈر ٹرپ کر چکے تھے۔ بجلی کی ترسیلی نظام بہت بری طرح متاثر ہوا ہے، ایک دم اتنی تیز آندھی کے ساتھ اورنج لائن جو تھی اس کو بھی جو ہے وقتی طور پر معطل کر دیا گیا تھا اور مسافروں کو اس کے کافی پریشانی کا سامنا ہوا۔ ابھی بھی آپ میرے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کنال روڈ کے اوپر ابھی بھی ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ شہر کے بیشتر شاہراہوں پر جو اسی طرح ٹریفک کی صورتحال ٹریفک کا شکار ہے۔ بات کریں موسم تو موسم میں درجہ حرارت میں بھی کمی آ چکی ہے، ٹھنڈی ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے، موسم خوشگوار تو ہے لیکن کچھ دیر پہلے جو ہے بڑی تیز طوفان کے باعث جو ہے وہ شہر کے اندر بہت سارے نقصانات بھی رپورٹ کیے گئے، جس کے اندر میجر دیواریں اور درخت گرنے کے واقعات، جو کہ میں نے بتایا کہ رائیونڈ محبتیاں کے علاقے میں دیواریں گری ہیں مختلف جگہ پر جو ہے۔ ٹھیک ہے مبین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مریم الہی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مریم بتائے گا اس وقت اسلام آباد کا موسم کیسا ہے؟ جی دیکھیں، اس وقت اگر آپ اسلام آباد کے موسم کی بات کریں تو منٹ ٹو منٹ فلکچویشنز موسم میں دیکھی جا رہی ہیں۔ اب سے صرف چند مومنٹس پہلے اگر یہ کہیں کہ سورج غروب ہو رہا تھا تو ایسا اب نہیں لگ رہا، کیونکہ سورج ابھی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ اس سے تھوڑی دیر قبل جب یہاں پر بارشوں کا سلسلہ ہوا اور شدید یالہ باری ہوئی، طوفانی بارشیں ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں ہوئی، اس کے بعد سے لے کے اب تک اسلام آباد کا موسم خاصا خوشگوار تو ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی ویدر کے اپنے چیلنجز بھی نظر آئے۔ سڑکوں کے اوپر پانی اکٹھا ہوا، لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گیا، لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر بھی جو ہے وہ خاصے یالہ باری کے باعث ڈینٹ بھی نظر آئے اور اس طرح کے ڈیمیجز بھی نظر آ رہے تھے۔ تو اسی طرح جہاں پر بارش بہت انپریڈکٹیبل ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایک دم شروع ہوئی، اس کے بعد کافی دیر رہی، کچھ علاقوں میں اسلام آباد کے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس وقت یہاں پر جو ہے وہ موسم خوشگوار ہے، لیکن اس وقت یہاں پر بارش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ NDMA کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو بارش کی فلکچویشن ہے اور جو بارش اور سورج کی جو وہ چلتا رہے گا آج کا پورا دن، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایڈوائزری میں یہ بتایا ہوا تھا کہ ان نیسیسری جو ہے لوگ باہر نکلنا اوائڈ کریں۔ اس وقت اسلام آباد کا موسم ایسا ہے کہ آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے باہر نکلنے سے پہلے کہ کیا تھوڑی دیر بعد ویدر کنڈیشن کیا ہوگی۔ ایک شدید موسمی صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھی جس طرح سے آئی اور اسی حوالے سے ایڈوائزری جو ہے وہ ایڈوائزری بھی جاری کی گئی تھی۔ بہت شکریہ مریم الہی آپ کا بھی، اور مبین حیدر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور جس طرح سے اسلام آباد اور لاہور کی صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ایسے میں اسلام آباد اور گردن میں طوفانی بارش اور شدید یالہ باری ہو رہی ہے۔ کالی گھٹاؤں سے دن کے وقت رات کا سما ہے اور ایسے میں موسلادھار بارش کی وجہ سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے، سڑکیں بھی پانی میں ڈوب گئی ہیں۔
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तूफान और बारिश के पेश नज़र इंतजामिया और रेस्क्यू को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज ने रावलपिंडी और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का नोटिस ले लिया। इंतजामी अफसरान को फौरी इकदाम करने की हिदायत जारी की गई है। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों से बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए हंगामी इकदाम की भी हिदायत की गई है और ऐसे में मरियम नवाज की जानिब से हुक्म दिया गया है कि वासा रावलपिंडी के अफसरान खुद फील्ड में पहुंचे, पानी का निकास यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएं और मरियम नवाज ने मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र दीगर शहरों में भी जरूरी इकदाम की हिदायत जारी कर दी हैं। पंजाब के बालाई और मैदानी इलाकों में गर्द आलूद तेज आंधी, मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, अटक, नारोवाल, संबड़ियाल, गुजरांवाला, सरगोधा, कुंदिया, चुनिया में भी तेज आंधी, आसमान पर काली घटाएं छा गईं। दिन में रात का समा, अटक में कच्चे मकान की छत और दीवार गिर गई। मुख्तलिफ वाकयात में 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। नारोवाल में तेज आंधी के बायस बिजली के तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। गुजरांवाला के इलाके धले में मस्जिद की दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी। सेटेलाइट टाउन में साइन बोर्ड गिरने से 2 खवातीन जख्मी हो गईं। सरगोधा में मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मुतादिद इलाकों की बिजली बंद है। चुनिया में भी वापडा के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कुंदिया में भी तेज आंधी के बायस दरख्त उखड़ गया, साइन बोर्ड और सोलर पैनल्स उखड़ गए। उधर जेहलम के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। गुलफिशा कॉलोनी में तेज आंधी के बायस दरख्त गिरने से नौजवान जाँ बहक हो गया। वेस्ट कॉलोनी में छत गिरने से एक खातून जाँ बहक। ढोक वहाबदीन में दीवार गिरने से होटल का वेटर जाँ बहक हो गया, जबकि दीना में मवेशी मंडी के करीब दीवार गिरने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पिंड दादन खान में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद घरों की छतों पर नस्ब सोलर प्लेट्स, होर्डिंग बोर्ड्स गिर गए हैं, जबकि शहरियों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है। मलिका कोहसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। गर्मी के सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर रखा है, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और दिलफरेब नज़ारों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे सरदार इकबाल से। जी, वीकेंड के मौका पर सियाहों की एक बड़ी तादाद मलिका कोहसार मरी पहुंची है, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम से जी भर कर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों में गुज़श्ता चंद रोज़ से जो गर्मी की लहर आई हुई थी, जिसके असरात मरी में भी महसूस किए जा रहे थे, लेकिन अचानक मरी में मौसम ने करवट बदली और अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे यहाँ का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है। इस खूबसूरत मौसम से यहाँ आए हुए से आप भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और इस मौसम को अपने कैमरे की आंख में भी महफूज कर रहे हैं और यहाँ के नज़ारों को भी, और यहाँ पर वो चहलकदमी में भी मसरूफ़ है। अभी गाड़ियों की भी लाइनें लगी हुई है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहने की पेशगोई है। जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी और आला अस्करी क़यादत समेत सीनियर फौजी अफसरान के एजाज़ में इशाइया दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इशाइये में शरीक हुए। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी इशाइये में शिरकत की। वफाकी वज़रा, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला समेत सियासी जमातों की आला क़यादत, आला सरकारी हुकाम की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और सीनियर फौजी अफसरान भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज की जुर्रत, कुर्बानियों और अवाम की गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की तारीफ की। मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में सियासी क़यादत की इस्तकामत को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने साइंसदानों, इंजीनियर्स की पेशावराना महारत की तारीफ की। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार, पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे और कशीदगी के दौरान सिफारतकारों की शानदार खदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया के किरदार को बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आहनी दीवार करार दिया। ISPR के मुताबिक तकरीब में कौमी यकजहती और नए अज़्म और इत्तेहाद को भी सराहा गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इन ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत खित्ते के आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशांबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतादार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। दोस्त ममालिक ने हक़ बयानी का साथ दिया। पूरी जंग में तुर्किया ने मिसाल कायम की। अल्लाह ने हमें शानदार फतह से नवाजा है। सोशल मीडिया ने पाक भारत जंग में कलीदी किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ साहब अब रवाना हो रहे हैं दोस्त मुल्कों में और इंशाल्लाह उनको एक अच्छा वेलकम दिया जाएगा। तुर्की जाएंगे और तुर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया इस पूरी जंग के अंदर, मैं समझता हूँ बड़ा मिसाली है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को ऐसे दोस्त मैसर हैं जिन्होंने इस जंग में हक सच की जो एक हमारा एक नैरेटिव था उसका साथ दिया। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कराची ने, मुस्लिम लीग नून कराची के जो सोशल मीडिया के हमारे लोग हैं, यूथ के लोग हैं, मदर विंग है, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है इस जंग के अंदर, जहां पूरा मुल्क इकट्ठा था, बाकी पार्टी भी अपना किरदार अदा कर रही थी। हमारे मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जेन जी का, सबका बड़ा किरदार रहा है। भारत जो है वो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर है और उनके, मैं फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा था, उनसे बात नहीं हो रही थी, तो एक झूठा बयानिया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश की, वो बयानिया भी पिट गया। अहम खबर, लाहौर के इलाके डिफेंस में खातून को अगवा करने का मामला। पुलिस का फौरी एक्शन, मुलजिम गिरफ्तार, बीवी और 3 बच्चे बाहिफाजत बाज़ेयाब। मुलजिम अयूब को जिला विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने साथियों की मदद से बीवी और बच्चों को डिफेंस से अगवा किया था। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से रैकी करके गिरफ्तार किया गया। वकूए में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि ख़वातीन और बच्चे हमारी रेड लाइन है, किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नुमाइंदा लाहौर मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, मामले में मजीद पेशरफ पर आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिफेंस के एक इलाके में खातून जो है वो अगवा हुई थी। अब पुलिस ने जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और जो खातून और उसके बच्चों को भी जो है वो बाजियाब कर लिया गया है। मुलजिम अयूब को जिला घराड़ी के 3 लुटन से जो है वो गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने साथियों की मदद से अपनी साबका अहलिया और बच्चों को डिफेंस से जो है वो अगवा किया था। DIG ऑपरेशन इस इलाके का मुखिया और एक स्पेशल टीम जो है वो तश्कील दी गई। इसके बाद जो है वो डिफेंस पुलिस ने ये कार्रवाई की और मुलजमान को पुलिस का ये कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि जो वकूए में इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी थी वो भी। मुदस्सिर हुसैन तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदरत अहम इजलास हुआ। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। इजलास में फैसला, डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मंजूर किए जाएंगे। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। और मजीद भी कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदरत अहम इजलास हुआ। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। इजलास में फैसला, डिपोर्ट होने वालों के पासपोर्ट मंजूर किए जाएंगे। डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। और मजीद भी कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बायस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल हो गया। बजट मुज़ाकरा जारी रखने का ऐलान। IMF मिशन के सरबराह नितिन पोर्टर ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएं। मज़ीद जानिए इस्लामाबाद से तैयार करदा इस रिपोर्ट में। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। स्टेट बैंक अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। IMF के मिशन ने नितिन पोर्टर की सरबराही में पाकिस्तान का दौरा किया, जिसका आगाज 19 मई से हुआ था। एलामिया में कहा गया है कि दौरे का मकसद पाकिस्तान में आइंदा बजट की हिकमत अमली और तजावीज़ पर मुशावरत करना था। पाकिस्तान के साथ बजट से मुतल्लिक बातचीत मुस्बत रही। मुशावरत का मकसद 2024 के कर्ज प्रोग्राम में इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना
रखना था। चाहते हैं पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF के मिशन के सरबराह ने कहा कि बजट मुशावरत में तवानाई की इस्लाहात, पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने के लिए भी बातचीत हुई। मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने के लिए बुनियादी इस्लाहात पर भी बातचीत की गई। मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर दिया गया ताकि कोई खला ना रहे। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान में आइंदा माली साल अफराते ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक कंट्रोल रखी जाए। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम जबकि करेंसी एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखा जाए ताकि बैरूनी दबाव को बर्दाश्त कर सके। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान का मुआशी पॉलिसी में इस्तेहकाम के लिए कारबंद रहना काबिल सत्ताइश है। मौसमियाती तब्दीलियों पर फंडिंग के लिए IMF वफ्द 2025 की दूसरी शशमाही में दोबारा पाकिस्तान आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में सदारती ओहदा संभालने के बाद कई मौके पर भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और पाक भारत कशीदगी के दौरान खुसूसन इसकी हिमायत से इनकार करके मोदी सरकार को बड़ा धचका पहुंचाया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। दूसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कई बार आड़े हाथों लिया और तनकीद की। अपने पहले हुक्मनामे में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ मुहिम के दौरान मोदी हुकूमत को हजीमत उठाना पड़ी। उनकी कोई बात ना सुनी और 6 फरवरी को अमेरिका ने 104 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को बेदखल कर दिया। 13 फरवरी को मोदी से वाशिंगटन में मुलाकात के दौरान भी भारत पर ज्यादा टैरिफ वसूल करने पर शदीद तनकीद की और नरेंद्र मोदी से कहा, आप टैरिफ किंग बन गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इंडिया तिजारती ताल्लुकात को पामाल करता है। 7 मार्च को सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत को बड़े तौहीन अमेज अंदाज में कहा कि अमरीकी दरामदात पर भारत टैरिफ में गलत अदादोशुमार से काम लेता है। पाक भारत जंगबंदी में भी जहां सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा करने का दावा किया, वहीं उन्होंने कशीदगी के दौरान भारत की हिमायत से हाथ खड़े करके मोदी सरकार को सख्त मायूस किया। 12 मई को व्हाइट हाउस में गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने पाकिस्तान पर भारतीय हमले को शर्मनाक करार दिया था। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर समेत हल तलब तनाज़ात पर सालसी की पेशकश करके नरेंद्र मोदी की आलमी सफारती ताकत बनने की ख्वाहिश पर पानी फेर दिया। 14 मई को दौरा सऊदी अरब के दौरान सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी करवाने पर बात की। उन्होंने भारत को वार्निंग देते हुए कहा कि वो जंगी कशीदगी तर्क करके तजारत पर तवज्जो दें। 15 मई को भी दोहा में ट्रंप ने अमरीकी फौजियों से खिताब में कहा, पाकिस्तान और इंडिया जंग की बजाय तिजारत पर तवज्जो दे। साथ ही एक और धचका पहुंचाया। उन्होंने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक को मुतनब्बे किया कि वो उम्मीद करते हैं आइंदा से अमेरिका में फरोख्त होने वाले आईफोन्स की भारत में तैयारी बंद की जाए। ट्रंप ने खबरदार किया, अगर अमेरिका में फरोख्त होने वाले आईफोन्स मुल्क के अंदर तैयार नहीं किए गए तो एप्पल को 25% टैरिफ अदा करना होगा। सिफारती माहिरीन और मुबसरीन की राय में भारत की मोदी सरकार सदर ट्रंप के रवैये से न सिर्फ मायूस है बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जंगी महाज आराई के बाद दबाव में आ गई है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जब ट्रंप ने हिंदुस्तान को तनकीद का निशाना न बनाया हो और पाकिस्तान की तारीफ की हो। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत शानदार लोग हैं, पाकिस्तान से तिजारत की बात होगी, वो बहुत अच्छी मसनूआत बनाते हैं। अब आपको बराह रास्त ले चलेंगे वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्कशॉप से खिताब। Emphasis on reducing import dependency and accelerating indigenous capability development across the entire energy value chain. Pakistan stands at a pivotal juncture in its energy journey. While significant progress has been made in scaling up generation capacity, our reliance on imported equipment, systems and technical solutions remains a fundamental challenge. इन challenges के अंदर हर रोज एक इजाफा हो रहा है, कोई इसके अंदर कमी नहीं आ रही because of technological improvements or new technologies kicking in like battery storage etc, distributed solar की जो एक massive shift आई है जो इस वक्त हम देख भी रहे हैं। The solar energy revolution, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में पता नहीं कब आएगी नहीं आएगी, हम हमेशा भी लुकिंग एट द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। रिन्यूएबल की रेवोल्यूशन आ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट जस्ट ऑन ग्रिड बट ऑफ